Recording in progress. Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is From the Footprint, Class 6, Chapter 16, The Four Realms of the Earth. David Livingstone was a Scottish missionary and one of the greatest European explorer of Africa. तो जो डेविड लिविंगस्टोन थे वो एक स्कॉटिश मिशनरीज थे और ग्रेटेस्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर थे अफ्रीका के. He worked in Africa for 30 years as a medical missionary और उन्होंने अफ्रीका में 30 साल तक मेडिकल मिशनरी की तरह काम किया. During this period, he traveled into the interiors of the continent and provided the outside world valuable information about the central and the southern part of Africa that was hitherto unknown. So, इस पीरियड के दौरान उन्होंने ट्रैवल करा इंटीरियर पार्ट्स कॉन्टिनेंट के और प्रोवाइड करी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड में. किसके बारे में? सेंट्रल और साउथर्न पार्ट अफ्रीका के बारे में. Four realms of the earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and the last is biosphere. Lithosphere is land, continent and ocean beds. Hydrosphere is water, ocean, seas, lakes, rivers, frozen water, underground water and water vapor. Now the atmosphere having 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. What difference do you notice among the pictures discussed in the class? So this is the lithosphere, hydrosphere, your atmosphere and the biosphere pictures. Life is possible on earth because of the presence of water, air and soil. लाइफ अर्थ पर क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट था, एयर थी और सॉइल था. द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ इज conducive for living due to the interaction of its three realms or domains. तो अर्थ पर लिविंग थिंग या हम क्यों जिंदा रह पाए? बिकॉज ऑफ दीज थ्री रिलीम्स. नाउ लैंड और लिथोस्फेयर, water or hydrosphere, air or atmosphere. Living beings on earth are found in a narrow zone of contact between these three limbs, which is known as the biosphere. जो लिविंग बीइंग्स हमारी अर्थ पर मिलती है उनमें नैरो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक दूसरे से. क्यों? क्योंकि इन तीन रिलीम्स के चक्कर में. और उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. We can say that biosphere is a realms of earth. हम ये कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर है वो क्या है? अर्थ का रिलीम है. Now if you see in this picture, this is the structure of earth. तो सबसे पहले आपका आता है क्रस्ट, उसके बाद आता है आपका मेंटल एंड देन आपका आता है कोर. This is the layer of earth. So this is the inner core, outer core, lower mantle, upper mantle and your earth surface. Lithosphere. Look at the earth structure in figure 16.2a and figure 16.2b. We live on the outer surface of the earth. हम कहाँ पे रहते हैं? आउटर सरफेस पे रहते हैं अर्थ के. If we imagine the earth to be like an onion, we will understand that it is made of concentric layers. अगर हम ये मानते हैं कि अर्थ हमारा एक अनियन है तो हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एक के
बाद एक सर्कल बना हुआ है, तो उसको ही क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर. द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट. जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट. बिलो इट is the mantle, and below the mantle is the core, which is the innermost layer of the earth. और क्रस्ट के नीचे होती है मेंटल, और मेंटल के नीचे होती है कोर. और कोर क्या होती है, सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है अर्थ की. The entire crust and the uppermost solid part of the mantle makes up lithosphere, meaning the sphere of solid rocks. तो जो एंटायर क्रस्ट है या अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है मेंटल का, वो किससे बना होता है, लिथोस्फेयर से. और स्फेयर का मतलब है सॉलिड रॉक से बना होना. लिथो इन द ग्रीक मीन्स रॉक. लिथो को ग्रीक में बोलते हैं रॉक्स. द लिथोस्फेयर कंप्राइजेस बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेड्स. जो लिथोस्फेयर है उसमें दोनों चीजें आती हैं, कॉन्टिनेंट भी और आपके ओशन बेड्स भी. Many physical features such as mountains, plains and plateaus are present on the lithosphere. जो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे आपके माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यूज, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, लिथोस्फेयर में. These features are important as they support a variety of flora and fauna. ये फिजिकल फीचर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं हमारे फ्लोरा और फौना के वेजिटेशंस और एटमॉस्फेयर में. ज्योग्राफी इन डेप्थ. Scientists believe that Earth is approximately 4-5 billion years old. Scientists ये मानते हैं कि अर्थ 4-5 billion year old है. It originated as a hot mass of gases and molten material. और ये कैसे बनी है, हॉट गैसेस से और मोल्टन मटेरियल से. With the passage of time, the earth cooled down. और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे धरती हमारी ठंडी होती गई. Its outermost layer cooled to form solid, light-weighted rocks, but the inner is still like a gigantic furnace. तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर थी अर्थ की, वो क्या हो गई, ठंडी हो गई. और वो किस में चेंज हो गई, रॉक्स में. लेकिन जो उसका इनर एरिया था वो किसकी तरह था, एक आग की भट्टी की तरह था. The uppermost solid layer of the earth's surface is known as crust. That is 5 to 50 kilometer thick. और जो अर्थ की uppermost solid layer थी उसको बोला गया crust. और ये crust कितनी थिक में थी, 5 से 50 किलोमीटर थिक थी. It is made up of 2 solid layer. और ये 2 solid layer से बनी थी, साइल एंड सीमा. साइल था आपका सिलिकॉन और आपका एल्यूमिनियम का मिक्सचर, और सीमा था आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम का मिक्सचर. साइल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सिलिका, silicon and aluminum, as it has rocks that are rich in both these minerals. ये नाम क्यों रखा गया इनका, क्योंकि ये इन रॉक से बनी थी, और ये इन रॉक्स ये जो थे वो दोनों ही रॉक्स में रिच थे. सीमा गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन गुड क्वांटिटी इन द रॉक्स ऑफ दिस लेयर. और इन रॉक्स की लेयर में ये सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है अच्छी क्वांटिटी में, इसलिए इसको सीमा बोला गया. The mantle lies below the crust and it is made up of rocks that are denser than the crust. और जो मेंटल है वो क्रस्ट लेयर के बाद आती है, और ये रॉक्स थोड़े से ज्यादा डेंस होते हैं क्रस्ट एरिया के रॉक से. The uppermost part of the mantle is made up of solid rocks. जो uppermost part होता है मेंटल का, वो किससे बना होता है, सॉलिड रॉक से बना होता है. Below the upper solid layer of the mantle is the middle layer of the mantle known as the asthenosphere, which is between 100 kilometer to 300 kilometer deep. जो upper solid layer होती है mantle की,
वो मिडल लेयर ऑफ मेंटल जो होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जिसकी डेप्थनेस कितनी होती है 100 से 300 किलोमीटर डीप. It is made up of rocks that are in semi-solid state. This is due to extreme heat and pressure. और यहाँ पे जो rocks होते हैं वो कैसे होते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट में होते हैं, और वो किसकी वजह से होते हैं, हीट और प्रेशर की वजह से. Below this, the mantle is again solid up to the depth of 2900 किलोमीटर. और इसके बाद अपर लेयर और मिडल लेयर के बाद जो मेंटल आता है वो अगेन सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें 2900 किलोमीटर तक. बिलो द मेंटल इज द कोर ऑफ द अर्थ. और मेंटल के नीचे हमें मिलते हैं कोर अर्थ का. द कोर इज मेड ऑफ हेवी मेटल सच एज आयरन एंड निकल. और जो कोर है वो हेवी मेटल से बना होता है, और वो हेवी मेटल्स कौन से होते हैं, आयरन और निकल. While the inner core is solid, the outer core is semi-solid because of the pressure and the heat generated here. जो आपका inner core है वो solid होता है, जबकि जो outer core है वो semi-solid होता है due to pressure and heat generated here. Continents. The 7 continents, see the map on the next page, make up less than 1/3 of the Earth's surface, including big and small land masses. जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो 1/3 अर्थ सरफेस का एरिया बनाते हैं, चाहे वो उसमें छोटे लैंड मासेस होते हैं चाहे बड़े लैंड मासेस होते हैं. एशिया. एशिया लाइज मोस्टली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एशिया हमारा कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. अर्थ के 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. तो उसमें जो एशिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. It is the largest continent of the world, both in terms of geographical area and population. ये हमारा largest continent है वर्ल्ड में, चाहे ये geographical area के हिसाब से देखा जाए या यहाँ की population के हिसाब से देखा जाए. Asia has the highest mountains on earth. Mount Everest 8,848 meter, and the lowest land region, the Dead Sea, 430 meter below sea level at the surface. तो जो हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पर वो है माउंट एवरेस्ट, और जो लोएस्ट लैंड है यहाँ पर वो है डेड सी. The Pacific Ocean borders Asia in the east, the Arctic Ocean in the north, and the Indian Ocean in the south. जो पैसिफिक ओशंस हैं बॉर्डर है एशिया का ईस्ट में, आर्टिक ओशन कहाँ है, नॉर्थ में, और इंडियन ओशन कहाँ है आपका, साउथ में. The Caspian Sea and the Ural Mountains separate Asia from Europe. और जो कैस्पियन सी और यूरल माउंटेन है वो एशिया को यूरोप से सेपरेट कर देता है. These two continents form the longest stretch of land from west to east and are together known as Eurasia. तो आपके ये जो 2 कॉन्टिनेंट है वो एक लॉन्गेस्ट स्ट्रेच बना देते हैं लैंड का वेस्ट से ईस्ट में, और इन दोनों को मिला के जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम यूरेशिया. नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज योर अफ्रीका. जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है आपका अफ्रीका. It spreads across the northern and southern hemisphere, with the equator passing almost halfway through the continent. और ये spread है आपका नॉर्थ से साउथर्न हेमिस्फीयर, और इसमें से इक्वेटर भी पास होता है. लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका के इधर इक्वेटर भी आपका यहाँ पर ये जो डार्क लाइन है इक्वेटर की, ये पास होती है. अफ्रीका इज लिंक्ड टू एशिया बाय इस्थुमस ऑफ स्विस. तो जो अफ्रीका है वो एशिया से लिंक्ड है किसके थ्रू, इस्थुमस के थ्रू. यहाँ पे ये जो लैंड है आपकी अफ्रीका के साथ, ये दिस इज इस्थुमस. It has the world's largest desert, the Sahara Desert,
Another major desert which is really an arid savanna, the Kalahari. और यहाँ पर अफ्रीका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट मिलता है एंड दैट इज सहारा डेजर्ट. और भी मेजर डेजर्ट मिलता है जो एरिड रीजन है सवाना, जो है कालाहारी डेजर्ट. दिस कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल. और यहाँ पे अफ्रीका में ही वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर मिलती है, उसका नाम है नाइल. और नाइल कितने किलोमीटर बड़ी है? 6,650 kilometer long है. The highest mountain in Africa is Mount Kilimanjaro, which is 5,895 meter high. और यहाँ पे अफ्रीका में सबसे हाईएस्ट माउंटेन मिलता है एंड दैट इज माउंट किलिमंजारो, जिसकी हाइट कितनी है? 5,895 मीटर. Even though it is almost on the equator, Kilimanjaro is so tall that glaciers form at its summit. तो किलिमंजारो इतना ऊंचा है कि वहां पे ग्लेशियर्स फॉर्म हो जाते हैं उसकी पीक्स पर. Did you know? For the longest time, Africa was known as the Dark Continent because it remained unexplored for a long time. And even today, there is still so much to discover about it. अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था. क्यों? क्योंकि उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी. इवन आज भी लोगों को बहुत सारी चीजें डिस्कवर करनी है अफ्रीका के बारे में. नाउ द थर्ड कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट. सेवन कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. It is bordered to the north of Arctic Ocean, to the east by the Atlantic Ocean, and to the west of the Pacific Ocean. तो ये बॉर्डर है किसके? के नॉर्थ साइड पे आर्टिक ओशन से, ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन से, और वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन से. Denali or Mount McLean, as it was earlier named, it is the highest point in the North America. तो ये आपके हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका में. Lake Superior, the largest freshwater lake in the world, is located here. तो नॉर्थ अमेरिका में आपका लेक सुपीरियर है जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. The southernmost part of the North America is often called Central America. और जो साउदर्न पार्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका का, उसको हम जनरली क्या कहते हैं? सेंट्रल अमेरिका. इट इज द नेक ऑफ लैंड जॉइनिंग नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका. क्यों? क्योंकि ये किसको ज्वाइन करता है? नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को. साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका lies mostly in the southern hemisphere, stretching down towards Antarctica. और जो साउथर्न अमेरिका है वो कहाँ पे लाई करता है? साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. और ये कहाँ पे स्ट्रेच हुआ हुआ होता है? एंटार्क्टिका की साइड. द एंडीज रन थ्रू द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. और जो आपके रॉकीज और एंडीज हैं माउंटेन, जो एंडीज माउंटेन है वो आपका नॉर्दर्न से वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में फैला है. द Amazon rainforest, the largest tropical rainforest in the world, covering over 5.5 million square kilometer, is located here. तो नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपका अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और यहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलती है. और ये कितना बड़ा है? 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. Brazil, Argentina and Peru are the largest country of this continent. और जो आपकी अमेरिका है उसकी लार्जेस्ट कंट्रीज कौन सी है? ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पेरू. The continent of North America and South America are linked through the Isthmus of Panama. The Panama Canal was cut across it to link the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean.
तो जो आपका नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है वो भी इस्थमस से ज्वाइन है और उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। और जो पनामा कैनल है वो अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है पैसिफिक ओशन से। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका इज द वर्ल्ड ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। जो एंटार्क्टिका है वर्ल्ड का ड्राई और सबसे ज्यादा कोल्ड कॉन्टिनेंट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ पोल टू द एंटार्क्टिक सर्कल। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड है, साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल तक। It is called the white continent as a thick carpet of ice and snow cover it entirely. और इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो एक मोटे कारपेट, जो आइस का कारपेट होता है उससे ढका हुआ है। Only penguins, seals, whales and some other animals are found here. सिर्फ यहाँ पर penguins, seals, whales और कुछ जानवर ही मिलते हैं। There is no permanent human habitation here. और यहाँ पे कोई भी permanent human habitation नहीं है। The average temperature on the continent is -49 degrees Celsius. और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है कॉन्टिनेंट का, एंटार्क्टिका का, वो होता है -49 डिग्री सेल्सियस। यूरोप, यूरोप इज बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरियन सी टू द साउथ, एशिया टू द ईस्ट एंड अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। तो यूरोप आपका बॉर्डर्ड है मेडिटेरियन सी से साउथ साइड में, एशिया से ईस्ट में और अटलांटिक ओशन से वेस्ट में। Europe is home to the smallest country in the world, the Vatican city-state, area 110 acres. और जो यूरोप है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री यहाँ पर मिलती है, उसका नाम है वेटिकन सिटी स्टेट। The tallest mountain in Europe is Mount Elbrus in Russia. और जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट माउंटेन है यूरोप में उसका नाम है माउंट एल्ब्रस और वो कहाँ है, रशिया में। एंड द फेमस एल्प्स माउंटेन आर लोकेटेड इन यूरोप। और जो फेमस माउंटेन है एल्प्स वो आपका कहाँ है, यूरोप में। With its uneven and intended coastline, Europe is made up of more seafaring nation than any other continent. Because of कि उसकी coastline बहुत uneven है, इसलिए यूरोप में सबसे ज्यादा खतरा रहता है बाढ़ आने का या seafaring का। ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया और वो कहां पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। दैट इज व्हाई इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज कॉन्टिनेंट डाउन अंडर। और इसलिए उसको कभी कभार ही बोल देते हैं डाउन अंडर कॉन्टिनेंट। द ऑस्ट्रेलियन लैंड मास टुगेदर विद द आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, Papua New Guinea and Tasmania is known as Oceania. और जो यहाँ के लैंड मासेस हैं ये जब मिलकर आपका आइलैंड बनाते हैं उसको हम कहते हैं ओशनिया। वास्ट एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कवर्ड बाय डेजर्ट। जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा किससे कवर है, डेजर्ट से। The highest point in Australia is Mount Kosciuszko, and that is 2228 meter and 7310 feet. A very interesting feature of this continent is the Great Barrier Reef. जो यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इस कॉन्टिनेंट का, ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या है, द ग्रेट बैरियर रीफ। It covers over 2500 kilometer of corals. ये किससे कवर हुआ है, कोरल से। and is now the largest living structure in the world. और अब ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में। Hydrosphere. The hydrosphere comprises oceans, seas, lakes, river, frozen water, underground water, and the water vapor in the atmosphere. आपका जो हाइड्रोस्फीयर है वो इन सारी चीजों को कंप्राइज करता है।
हाइड्रो इज द ग्रीक वर्ड फॉर वाटर. हाइड्रो एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है वाटर, पानी. वाटर कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. और वाटर ने क्या कवर कर रखा है? 70% अर्थ के सरफेस को. Recall what you have already learned about Earth being called the blue planet. क्यों हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि अर्थ के पास 70% क्या है? वाटर है, और सिर्फ 30% ही आपकी लैंड है. The oceans and seas have a saline water, constitute 97.3% of the hydrosphere. और जो ओशन और सी है उसमें कैसा वाटर मिलता है? सलाइन वाटर मिलता है, salty water. Only 2.7% of the water of the hydrosphere is fresh water with no salt content. सिर्फ 2.7% ही वाटर है जो हाइड्रोस्फीयर में मिलता है, जो फ्रेश वाटर है, जो सलाइन वाटर या सॉल्ट कंटेन नहीं करता. वाटर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन ए साइक्लिक मैनर विद इन द हाइड्रोस्फीयर. और वाटर क्या करता है? एक वाटर साइकिल बनाता है, इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन का, आपका कंडेंसेशन का, ये सारा साइकिल बनाता है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है. The endless series of changes undergone by water in the hydrosphere between the sea, air and land is known as hydrological cycle or the water cycle. जो आपका ये एंडलेस प्रोसेस होता है पानी का हाइड्रोस्फीयर में, किसके बीच? सी के, एयर के और लैंड के बीच में, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल. Water from ocean, seas and rivers on heating becomes water vapor and rises up in the air through evaporation. जो वाटर है हमारा ओशन से, सी से और रिवर से गर्म हो जाता है, किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में. और हवा में ऊपर उड़ जाता है, किसके थ्रू? इवापोरेशन के थ्रू. द वाटर वेपर देन कूल्स एंड चेंजेस into minute water droplets through condensation. और कंडेंसेशन के प्रोसेस से जो आपका वाटर वेपर है वो कूल डाउन हो जाता है. These tiny droplets of water join together to form clouds. और यही जो टाइनी वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं इकट्ठे मिलके क्या बना देते हैं? क्लाउड. On cooling further, the tiny droplets in clouds become larger and fall as rain. और धीरे धीरे जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स कूल हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? बारिश के रूप में नीचे गिरने लग जाते हैं. दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन हैपन्स आल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल. और जो प्रेसिपिटेशन है ओलों के रूप में और स्नो के रूप में भी होता है. Precipitation helps to maintain supply of fresh water on the earth. और precipitation के थ्रू हमें क्या मिल जाता है? फ्रेश वाटर मिलता है अर्थ पर. This rainfall या snowfall feeds glaciers, rivers, lakes and underground water sources and eventually goes back to the oceans, thus completing the water cycle. और इससे हमारा क्या हो जाता है? हमारे ग्लेशियर्स को, रिवर्स को, लेक्स को और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को पानी मिल जाता है और हमारा वाटर साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है. ओशंस. The oceans form the major part of hydrosphere. ओशन हमारे मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं किसके? हाइड्रोस्फीयर के. There are 5 oceans: the Arctic, Atlantic, Indian, Pacific and Southern Ocean. The 5 oceans are connected with each other, which means that the level of sea water remains the same everywhere. जो 5 ओशंस हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. इसका मतलब क्या है? कि जो लेवल है सी वाटर का वो हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा. दिस इज कॉल्ड द सी लेवल. और इसी को हम क्या कहते हैं? सी लेवल. Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean and covers more than 30% of the Earth's surface. जो Pacific Ocean है वो largest ocean है
और ये अर्थ के 30% लैंड को कवर करता है. The Earth's deepest point is located here, the Challenger Deep in the Mariana Trench. और यहाँ पे अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट लोकेट है और वो क्या है? मैरीना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में. Most of the islands of the world are found in the Pacific Ocean. More than 25,000 islands. तो आधे से ज्यादा आइलैंड वर्ल्ड के पैसिफिक ओशन में मिलते हैं. Most of the world active and dormant volcanoes are also located in the Pacific Ocean basin in a belt called the Pacific Ring of Fire. और जो बहुत सारे वर्ल्ड के वॉल्केनोज हैं वो भी आपके पैसिफिक ओशन की बेल्ट्स में मिलते हैं. That is known as Pacific Ring of Fire. Atlantic Ocean. The S-shaped Atlantic Ocean lies between Africa and Europe in its east and North America and South America on its west. जो S-shaped Atlantic Ocean है वो लाई करता है बीच में अफ्रीका और यूरोप के ईस्ट साइड में और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में. The equator divides it into the North Atlantic Ocean and South Atlantic Ocean. जो इक्वेटर है वो आपके अटलांटिक ओशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में और दूसरा साउथ अटलांटिक ओशन में. इट इज द सॉल्टेस्ट ओशन और ये ओशन क्या है? सबसे ज्यादा खारा ओशन है. Some of the most common natural hazards associated with this ocean are icebergs and hurricanes. Hurricane Katrina in 2005 was one of the most destructive hurricanes even. तो जो यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉमन नेचुरल हैजर्ड है वो क्या है? आइसबर्ग और हरिकेन्स. तो हरिकेन्स जो कैटरीना था 2005 का वो यहाँ का सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हरिकेन्स था. The Mid-Atlantic Ridge is an underwater mountain range of the floor of Atlantic. It is the longest mountain range on Earth and spreads from Iceland to Antarctic beneath the Atlantic. जो आपका मिड अटलांटिक रिज है वो अंडर वाटर माउंटेन रेंज फ्लोर है अटलांटिक का और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है अर्थ की. और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? आइसलैंड से एंटार्क्टिका तक. Indian Ocean. The Indian Ocean is mostly in the southern hemisphere and between Africa and Australia in East Asia. तो जो आपका इंडियन ओशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फीयर में है और ये किसके बीच में है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ईस्ट साइड पे एशिया. The Persian Gulf, Red Sea and Bay of Bengal are connected to this ocean. तो इस ओशन में क्या क्या मिलता है? पर्शियन ग्ल्फ, रेड सी और बे ऑफ बंगाल. इंडियन लाइज एज इट्स हेड और जो इंडिया है वो कहां पर है? उसके सर पर. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया. और जो इंडियन ओशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का ट्रेवल और ट्रेड है यूरोप और एशिया के बीच. आर्टिक ओशन. The Arctic Ocean is the smallest of the world's 5 oceans. जो आर्टिक ओशन है वो सबसे छोटा वर्ल्ड का वर्ल्ड ओशन है. The Northwest Passage and the Northern Sea Route are two important seasonal waterways. जो यहाँ पे आर्टिक ओशन में आपका नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज यूएस और कनाडा का और नॉर्दर्न सी रूट नॉर्वे और रशिया का इंपॉर्टेंट सीजनल वाटरवे है. During winter, this ocean is frozen. However, the ice melts and form large icebergs and floating island during summer. तो सर्दियों के टाइम क्या होता है? यहाँ का पानी क्या हो जाता है? फ्रोजन हो जाता है और गर्मियों के टाइम में यहाँ पर आइस मेल्ट होती है और लार्ज फॉर्म कर लेती है किसके? आइसबर्ग्स के और फ्लोटिंग आइलैंड्स के. साउदर्न ओशन.
The Southern Ocean is located around the South Pole across the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere. जो Southern Ocean है वो कहाँ पे located है? South Pole पे, और across कहाँ तक? Antarctic Circle से Southern Hemisphere तक. Atmosphere. Can you imagine living without breathing? क्या आप कभी imagine कर सकते हो कि living thing जिए बिना सांस लिए? We need air for this. हमें क्या चाहिए होती है? हवा चाहिए होती है इसके लिए. The importance of air that surrounds the earth is called atmosphere. और जो आपका आसपास जो हवा होती है जिसने अर्थ को सराउंड कर रखा है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. It remains bound to earth due to the force of earth gravity. और ये किसके किसके कारण है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण. It extended for almost 10,000 kilometers above the surface of the earth. Beyond it is airless space. और ये extend कहाँ तक होता है? 10,000 किलोमीटर सरफेस अर्थ से, और उसके बाद क्या हो जाता है? एयरलेस स्पेस. As we go higher, the density of air keeps decreasing. That is why as we go higher up in the mountains, we find it difficult to breathe. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हवा का दबाव कम होता जाता है, और इसलिए माउंटेनर्स जनरली ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं जब वो माउंटेनरिंग करते हैं. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? मिक्सचर है गैसेस का. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंस होती है नाइट्रोजन गैस, दैट इज 78%. उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, that is oxygen, carbon dioxide. Oxygen is 21%, then carbon dioxide is 0.03, argon and all. Dust, pollen, salt, bacteria and water vapor are also present in air. ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? हवा में. Layers of the atmosphere. The atmosphere can be divided into layers based on their certain characteristics of the air at different levels. तो एटमॉस्फेयर को भी लेयर्स में डिवाइड करा है. क्यों? उनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. So if you can see over here, so the first one is your troposphere, then stratosphere, then mesosphere, then thermosphere, and last is your exosphere. The troposphere is the lowest layer and also the most related to the life on Earth. The troposphere extends upward for about 8 km to 16 km. Most weather phenomena are noticed here. तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो लोएस्ट लेयर है और यहीं पर सबसे ज्यादा लाइफ देखी जाती है अर्थ की. द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड होता है 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक, और यहाँ पर ही अर्थ के वेदर नोट किए जाते हैं. Extended to about 50 kilometers above the troposphere, the stratosphere is the most important because of the ozone layer. This layer protects us from the sun lethal ultraviolet rays of the sun. तो यहाँ पर ये जो ट्रोपोस्फेयर है उसके बाद कौन सी लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फेयर आती है. और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर कौन सी वो मिलती है आपको लेयर? ओजोन लेयर मिलती है, जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है. The mesosphere, which extends above the stratosphere, is where many meteors gets burned as they enter the Earth atmosphere. This stretches to about 85 kilometers. और आपकी ट्रोपोस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मीसोस्फेयर. मीसोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेट्रॉट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले. The thermosphere, that also include the ionosphere, overlap the mesosphere and continues to about 640 kilometers. The ionosphere is important as it electrified molecules or ions make radios and television wave transmission possible. All satellites are therefore stationed in this layer. तो आपका जो थर्मोस्फेयर की लेयर है
ये आइनोस्फीयर भी लेयर है और यहाँ से ही जो आपके रेडियो टेलीविजन की वेव्स हैं वहां ट्रांसमिट होती हैं। और जितने भी सैटेलाइट है वो थर्मोस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट है। बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर इज द एक्सोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के बाद आती है एक्सोस्फेयर, which is made up of extremely rarefied layer. It extends to about 10,000 किलोमीटर। और ये कितनी एक्सटेंड हुई हुई है? 10,000 किलोमीटर। स्पेस स्टेशंस आर लोकेटेड एट इट्स लोअर मार्जिन। और जो स्पेस स्टेशंस हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? इसके लोअर मार्जिन पर लोकेटेड है। द एक्सोस्फेयर मर्जेस विद आउटर स्पेस। और जो एक्सोस्फेयर है वो किससे मर्ज हो जाती है? फिर आउटर स्पेस से। Human beings use a variety of chemical compounds that have been found to make holes in the ozone layer. तो ह्यूमन बीइंग ने केमिकल कंपाउंड्स बनाए जिसकी वजह से क्या हो गया? ओजोन लेयर में सुराख हो गए। CFC, chlorofluorocarbons, used in refrigerators and air conditioners. तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कहाँ पे यूज होते हैं? रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में। Aerosols used in substances such as paint, detergent, or insecticide, packed under pressure with a gaseous propellant for release as a spray of fine particles. और जो एरोसोल्स हैं वो कहाँ यूज हो रहे हैं? पेंट में, डिटर्जेंट में और इंसेक्टिसाइड्स में। Scientists are now developing CFC-free gadgets to stop the ozone layer being damaged. और अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? CFC फ्री गैजेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर क्या ना हो और ज्यादा खराब ना हो। Why is atmosphere important? Atmosphere important क्यों है? It acts as a blanket and helps in maintaining the right temperature of the earth. ये कैसे एक्ट करती है? एक ब्लैंकेट के रूप में एक्ट करती है जो हेल्प करता है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। Air has weight and it exert pressure on the earth surface. एयर के पास वेट होता है और ये क्या करती है? प्रेशर को एक्सर्ट करती है अर्थ की सरफेस पे। दिस atmospheric pressure is highest near the surface of the earth and it decreases with the increase in altitude. और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ होता है? अर्थ की सरफेस के पास में। जैसे जैसे हाइट या ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। एयर प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जो एयर का प्रेशर है वो टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है। व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट बिकम लाइट एंड राइजेस अप। द राइजिंग एयर कॉजेज लो एयर प्रेशर। जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर जाने लगती है जिसकी वजह से कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है? लो एयर प्रेशर। लाइकवाइज when air cool it become heavy and sinks down. The sinking air causes high air pressure. और उसकी तरह ही जब हवा ठंडी होती है तो वो हैवी हो जाती है और वो नीचे सिंक करती है। और यही जो सिंकिंग एयर होती है ये कॉज करती है क्या? हाई एयर प्रेशर। दिस कॉज मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड विंड्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। और यही मूवमेंट हवा की क्या कहलाती है? विंड्स, जो कहां से चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। बायोस्फीयर। Biosphere, the interaction between the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere give origin to the realm or zone of life called the biosphere. जब इन तीनों स्फीयर्स ने मिले तो इन तीनों स्फीयर्स की वजह से क्या क्रिएट हुआ? आपका बायोस्फीयर। मोस्ट लाइफ फॉर्म आर फाउंड इन ए नैरो बेल्ट और near the surface of land and water where it is surrounded by air.
तो जितनी भी हम लाइफ देखते हैं वो कहाँ पर मिलती है हमें, या तो सरफेस लैंड के या वाटर के, या जिसके आसपास क्या होती है, हवा। All forms of life, ranging from the tiniest microorganism to the largest plant and animal, are found in this contact zone that becomes their habitat, a natural environment where life thrives and multiplies. तो जो ये जितनी भी लाइफ है, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, तो वो कहाँ मिलती है, इसी जोन में मिलती है जो उनका क्या बन जाता है, हैबिटेट। एक नेचुरल एनवायरनमेंट जहां पर उनकी जिंदगी जन्म लेती है और ज्यादा मल्टीपल होती है। A community of organisms interacting with each other and with their non-living environment is called an ecosystem. जो कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्ट करती है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से, तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। इट इज नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लिविंग और बायोटिक एंड नॉन लिविंग थिंग अबायोटिक। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके बायोटिक, और जो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कहलाते हैं, अबायोटिक पार्ट। The abiotic physical environment consists of land, water, and air, while the biotic or biological environment consists of all living beings that are closely interdependent. तो जितने भी अबायोटिक फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, आपके लैंड, वाटर और एयर को, और जो आपके बायोटिक एनवायरनमेंट होते हैं वो लिविंग थिंग्स को, और जो क्लोजली इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड है, उनको शो करते हैं। These living things interact with each other as well as with other non-living things, forming a delicate network of interrelationship. और जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और नॉन लिविंग थिंग से भी, ताकि एक डेलिकेट नेटवर्क रिलेशनशिप का क्रिएट हो पाए। In nature, there is an ecological balance between living thing and non-living thing, the biological environment and the physical environment. तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो किसके बीच होता है, लिविंग थिंग के और नॉन लिविंग थिंग के, और जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट। दिस बैलेंस इज अपसेट व्हेनेवर any one of these things increases or decreases. ये इकोलॉजिकल बैलेंस अपसेट कब हो जाता है, जब इनमें से कोई भी चीज या तो बहुत बढ़ जाती है या कम हो जाती है। जैसे indiscriminate development and urbanization has resulted in the loss of forest cover and pollution. तो जब हमने डिफॉरेस्टेशन करा तो उसकी वजह से क्या हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लॉस होने लगा और पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ने लगा। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर। जो ह्यूमन बींग है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का नेचर में। However, it is mainly their action that upset the balance in nature. और जो मेनली एक्शन वो करते हैं उसकी वजह से क्या हो गया है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है नेचर में। The four limbs of the earth are interdependent on each other, and all human growth, planning, and progress must make sure that the balance between them is always maintained. तो जितने भी आपके फोर limbs हैं, आपका lithosphere, hydrosphere, and your atmosphere, and these three combines become the biosphere. तो ये सारे आपके क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो जो भी ह्यूमन ग्रोथ करते हैं, प्लानिंग करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं, उन्हें हमेशा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके करना चाहिए। इट इज ओनली देन द अर्थ and its valuable resources can be saved for future generation. क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास कुछ भी बचेगा नहीं।
Greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide emitted from industries and vehicles trap the sun heat in the atmosphere and do not allow it to escape. तो क्या होता है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, वो क्या करती है, सन की जो हीट है उसको एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है और उसको वापस नहीं जाने देती. This heat is then re-emitted in all direction. This is called greenhouse effect. और यही हीट वापस क्या होती है, सब जगह फैलती है और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. The high level of emission of greenhouse gases in the atmosphere is increasing the Earth's atmospheric temperature, causing the phenomenon of global warming. और क्योंकि ये हीट ट्रैप हो जाती है और वापस नहीं जा पाती, इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और इसी को क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग. If you like the way as I'm teaching, so do like and do subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.